میں نے سربت کی یہ ساری روایات سنی۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس نے منو ان مجھے بتا دیا ہے۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو روا تھے۔ جب گنڈوں نے اسے اسٹیشن وین میں ڈالا تو سربت کے جسم پر کئی خراشیں آئی تھیں۔ اس کی پنڈلیوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا۔ اس کی یہ خونی خراشیں دیکھ کر میرا دل ہول ہو گیا۔ میری نگاہوں میں واجد عرف واجی کا منحوس چہرہ گھومنے لگا۔ جی چاہا کہ میرے پاس پستول ہو اور میں اس کو گولیوں سے چھلنی کر دوں۔ شدید تیش کے عالم میں مجھ پر عیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بدن لرزتا ہے اور سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹتے تھے۔ دماغ بہت کچھ کرنے کو چاہتا تھا مگر جسم ساتھ دینے سے انکار کر دیتا تھا۔ اس وقت بھی کچھ یہی عالم تھا۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے 15-20 منٹ ہو چکے تھے۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کر کے واپس گھر کی طرف موڑ دی۔ 10 منٹ بعد ہم گھر کے اندر تھے۔ سربت کو دیکھ کر گھر میں تہلکہ مچ گیا۔ خالہ صفیہ نے اسے گلے سے لگا کر بھینس لیا اور تشکر کے آنسوؤں سے بھگونے لگی۔ باقی اہل خانہ بھی شدید حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھے۔ سربت کو اندر کمرے میں پہنچایا گیا۔ اسے پانی وغیرہ پلایا گیا تاکہ وہ نارمل حالت میں آ سکے۔ کمرے میں ہجوم زیادہ ہو گیا تھا۔ خالو جان کے کہنے پر باقی افراد باہر نکل آئے۔ صرف خالہ صفیہ، امی اور چچی وغیرہ وہاں ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں جا کر میں نے خالو اور ناصر بھائی وغیرہ کو تفصیل بتائی کہ سربت کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح شدرے کے قریب ایک فیکٹری سے بھاگ کر یہاں پہنچی ہے۔ یہ انکشاف سب کے لیے تکلیف دہ تھا کہ یہ اسی محلے کے رہنے والے واجی اور قادر وغیرہ کا کام ہے۔ ناصر بھائی ایک دم آگ بگولا نظر آنے لگے۔ انہوں نے کہا، میں جا رہا ہوں، اس بدمعاش کی طرف اسے لاش بنا کر ہی واپس آؤں گا۔ وہ پستول لینے کے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ ہم سب نے انہیں بمشکل روکا۔ خالو جان نے کہا، خدا کا شکر ہے کہ ہماری بچی صحیح سلامت واپس آ گئی۔ اب ہمیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ ہم جو کریں گے قانون کے مطابق کریں گے۔ ہم ابھی تھوڑی دیر میں تھانے جاتے ہیں۔ خالو جان نے 1-2 جگہ فون کی۔ میں نے بھی اپنے دوست زبیر کو بلا لیا۔ ہم تھانے پہنچے اور متعلقہ تھانے دار اشرف شاہی کو تفصیل کے ساتھ ساری بات بتائی۔ تھانے دار یہ سب کچھ سربت کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ سربت کا بیان لینے کے لیے وہ اسی وقت ہمارے ساتھ گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے کہا، جناب ابھی وہ شوق کی حالت میں ہے، اسے سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت دیں۔ اس دوران میں آپ اپنی کارروائی کریں۔ آپ کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے پر مجھے قانون قاعدے کے مطابق چلنا ہے۔ کارروائی مغویہ کے بیان کے بعد ہی شروع ہوگی۔ مجبوراً ہمیں تھانے دار اشرف شاہی کو گھر لے جانا پڑا۔ میں اس کے پہنچنے سے 10-15 منٹ پہلے ہی گھر پہنچ گیا اور سربت کو بیان دینے کے لیے تیار کیا۔ تھانے دار کے آنے کے بعد بھی میں، خالو جان اور ناصر بھائی کمرے میں موجود رہے۔ بات کرتے ہوئے سربت کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ بہرحال اس نے وہ سب کچھ تھانے دار اشرف کے گوش گزار کر دیا جو 2-2.5 گھنٹے پہلے مجھے بتایا تھا۔ تھانے دار اشرف شاہی نے پوچھا، آپ نے واجد عرف واجی کو خود دیکھا ہے مگر اس کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں؟ میں نے ان کی آوازیں سنی ہیں جی۔ میں قادر اور ایک دوسرے لڑکے شکیل کی آواز اچھی طرح پہچانتی ہوں۔ تنگ تو آپ کو واجی کرتا ہے، دوسرے لڑکوں کی آوازیں آپ کیسے پہچانتی ہیں؟ میں نے کہا، جناب آپ وقت ضائع کرنے والے سوال کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خبیث بھی واجی کے ساتھ ہی ہوا کرتے ہیں۔ یہ سب ایک ٹولی کی شکل میں تھے۔ تھانے دار اشرف نے گھور کر مجھے دیکھا تو جب یہ لوگ ان کو تنگ کرتے تھے آپ آس پاس ہی ہوتے تھے۔ میں ایک دم گڑبڑایا، پھر سنبھل کر بولا، 1-2 بار ایسا ہوا ہے کہ ہم ریسٹورنٹ میں اکٹھے چائے پینے گئے اور یہ لوگ آدم کے۔ تھانے دار نے اپنے سوالات کا رخ خواہ میری اور سربت کی طرف موڑ دیا۔ خالو عثمان اسے بمشکل واپس اصل موضوع پر لائے۔ بیان قلم بند کرنے کے فوراً بعد تھانے دار اشرف اپنے عملے کے ساتھ پیدل ہی واجی وغیرہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک گلی چھوڑ کر ہی 1-2 منزلہ شاندار کوٹھی تھی۔ ہم نے ساتھ جانا چاہا مگر تھانے دار اشرف نے منع کر دیا۔ قریباً 1 گھنٹے بعد پولیس کے اس چھاپے کا نتیجہ سامنے آ گیا اور یہ نتیجہ ہمارے خدشات کے عین مطابق تھا۔ گھر میں فون کی گھنٹی بجی، میں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف تھانے دار اشرف شاہی خود تھا۔ اس نے خالو عثمان کو بلانے کا کہا۔ میں نے بتایا کہ وہ واش روم میں ہے۔ تھانے دار اشرف نے کہا، چاروں لڑکے اپنے گھروں سے غائب ہیں، ہم انہیں ان کے دوسرے ٹھکانوں پر ڈھونڈ رہے ہیں۔ شام تک پوزیشن صاف ہو جائے گی۔ جو چوکیدار زخمی ہوا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا، ابھی تک نہیں۔ بہرحال ہم رابطے میں رہیں گے، جیسے ہی کوئی خبر ملی آپ لوگوں تک پہنچ جائے گی۔ میں نے فون پر بات ختم کی ہی تھی کہ اندر سے خالہ صفیہ کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ میں اندر پہنچا۔ امی اور چچی کے علاوہ محلے کی 1-2 عورتیں بھی بیٹھی تھی۔ خالہ صفیہ نے پوچھا کہ اس کا فون تھا۔ پولیس اسٹیشن سے تھا، انسپکٹر بتا رہا تھا کہ ہم لڑکوں کو ڈھونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ خالہ صفیہ نے اشکبار انداز میں کہا، تابش مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، پیسے والے بھی ہیں، ان سے دشمنی پڑ گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا۔ چچی کلثوم نے تنگ آ کر کہا، ہائے ہائے کیسی بات کرتی ہو آپ، اب جس پر ظلم ہوا ہے وہ بولے بھی نہ۔ پھول سی بچی تھی ہماری، بچی تھی کہ الفاظ چچی نے اس طرح ادا کیے کہ میرے دل پر گھونسا سا لگا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ایک محلے دار عورت بول پڑی، ایسے لوگوں پر تو کتے چھوڑ دینے چاہیے، زندہ گاڑ دینا چاہیے۔ عورت کے پاس عزت آبرو کے سوا ہوتا ہی کیا؟
आए जालमों को जरा तरस ना आया। चच्ची ने बड़ी तासुफ से सरवत को सरतपा देखा। बच्ची को जख्म करके रख दिया है, भला क्या कसूर था। मौत जोगों ने सारी उम्र का रोना पल्ले बांध दिया। हमदर्दी के इस अंदाज ने सरवत को सर झुकाकर सिसकने पर मजबूर कर दिया। सरवत की छोटी बहन नुसरत ने चिल्लाकर कहा, चच्ची कैसी बातें करती हैं आप, खुदा का शुक्र करना चाहिए कि आपा सही सलामत घर वापस आ गई है। अल्लाह ने हम पर करम किया है। अल्लाह के करम से तो इनकार नहीं है बेटी, पर अपने दिल को कैसे तसल्ली दूं। इसकी उजड़ी पुजड़ी सूरत देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। मेरा पैमाना लबरेज हो रहा था। मैंने दबे दबे तय से कहा, चच्ची आप सब लोग कुछ देर के लिए बाहर बैठ जाएं, इसे जरा आराम करने दें। चच्ची ने मुझे घूरा। मैं पाँव पटकता हुआ बाहर आ गया। इन औरतों की बातें मेरे सीने में तीरों की तरह लगी थी, खास तौर से चच्ची की बातें। मैं चच्ची की मजाज को अच्छी तरह जानता था। चच्ची शुरू ही से मेरे इस रिश्ते के खिलाफ थी। वो मेरे लिए अपनी सगी भतीजी को लाना चाहती थी। इस सिलसिले में उन्होंने दरे पर्दा कोशिशें भी की थी। अब ये मामला खत्म हो चुका था, मगर वो बुग़्ज़ अभी तक चच्ची के दिल में मौजूद था। अभी नहीं ये मौका मिला था तो वो अपने अंदर की अदावत को छुपा नहीं पा रही थी। बज़ाहिर उन्होंने हमदर्दी के बोल बोले थे, मगर इन बोलों के पीछे जो दुश्मनी थी वो ज़हरे कातिल की तासीर रखती थी। न जाने क्यों मुझे ये एहसास होने लगा कि अम्मी जान भी सरवत की वापसी के बाद कुछ चुप चुप है। मेरा ख्याल था कि वो एक आध दिन मजीद यहाँ रहेंगी और सरवत की दिलजोई करेंगी, मगर वो अगले ही रोज़ तबीयत ख़राब होने का कहकर घर वापस चली गई। कहने वालों ने दुरुस्त कहा है कि मारने वालों के हाथ पकड़े जा सकते हैं, मगर बोलने वालों की जुबानें नहीं। अगले एक दो रोज़ में मुझे सही मानों में इस हकीकत का इदराक हुआ कि अगर किसी लड़की के साथ सरवत जैसी सूरत हाल पेश आ जाए तो इस पर क्या बीतती है। खुदा का लाख लाख शुक्र था कि सरवत जैसे गई वैसे ही वापस आ गई थी, मगर इर्द गिर्द के लोग ये बात मानने के लिए दिल से तैयार नहीं थे। सरवत के घर में अगले रोज़ मैंने फिर एक औरत को इस तरह की बातें करते सुना। ये भी कोई मोहल्लेदार ही थी, शक्ल से पढ़ी लिखी लगती थी और अपनी तरफ से इजहार हमदर्दी के लिए तशरीफ़ लाई थी। इसने रोनी सूरत बनाकर सरवत को गले से लगा लिया और इसके सर पर प्यार से हाथ फेरने के बाद खाला सफिया से बोली, मैं तो कहती हूँ बहन के जुल्म सहकर चुप रहना भी गुनाह है। आप इस मामले की पूरी पैरवी करें। बच्ची का डॉक्टरी मुआयना कराया है आपने? नुसरत ने सिर पिटाकर कहा, आंटी हम क्यों कराएं डॉक्टरी मुआयना, क्यों अपनी बेइज्जती का इश्तिहार दीवारों पर लगाएं। सब कुछ ठीक है, अल्लाह ने बड़ा करम किया है हमारे ऊपर। हाँ बेटी, ये तो बड़ा करम है कि ये जिंदा सलामत वापस आ गई है, मगर इन बदमाशों ने जो किया है इसकी सज़ा तो इन्हें मिलनी चाहिए। लड़की एक रात घर से बाहर रहा है तो इस बेचारी के पल्ले क्या रह जाता है। अभी पिछले साल की बात है, डिफेंस में हमारी बरादरी की एक लड़की थी, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ। बेचारी यतीम थी, पर इसकी माँ पूरी हिम्मत के साथ डट गई। कहने लगी कि हमारे साथ तो जो होना था हो गया, पर इन गुंडों को फांसी तक जरूर पहुंचाएंगे, पता नहीं और कितनों का भला हो जाएगा इससे। अब वो दोनों गुंडे जेल में हैं, इनमें से एक को तो सेशन कोर्ट से फांसी की सजा हो चुकी। इस औरत की गुफ्तगू के दौरान में ही नुसरत सरवत को लेकर बाहर निकल गई और दूसरे कमरे में चली गई थी। इसके चेहरे पर शदीद जल्लाहट के सिवा और कुछ नहीं था। 2 रोज बाद मैं घर गया और अम्मी बुझी बुझी नजर आई। क्या बात है अम्मी, आप चुप हैं? मैंने नाश्ते की मेज पर पूछा। कुछ नहीं, बस वही। सरवत की तरफ बार बार ध्यान चला जाता है। अच्छी भली हंसती खेलती लड़की थी। कोई बात नहीं अम्मी, फिर इसी तरह हो जाएगी, अभी तो शौक में है ना। इसी तरह कहाँ हुआ जाता है ताबिश, जब इस तरह की बात हो जाए तो पूरी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। अम्मी ने तवील आह भरकर कहा। फिर वो उठी और अलमारी में से एक दिन पहले का अखबार निकाला। अखबार वाले ने हस्बे रिवायत सरवत वाली खबर को खूब मिर्च मिसाला लगाकर बयान किया था। सरवत की एक पुरानी तस्वीर भी मौजूद थी जो न जाने कहाँ से हासिल की गई थी। इस 3 कालमी खबर की सुर्खियाँ पढ़कर ही मेरी रगों में अंगारे से भर गए। खबर नवीस ने खबर को दिलचस्प और सनसनी खेज बनाने में कोई कसर उठा नहीं रखी थी। खबर के आखिर में पुलिस ज़राए के हवाले से बताया गया था कि मज़कूरा फैक्ट्री के कमरे से इम्पोर्टेड सिगरेट, इंडियन शराब की 2 बोतलें और मूवी कैमरा वगैरह भी मिला है। इन शवाहिद से अंदाज़ा होता है कि चारों मुल्ज़मान मुग़व्वया की वीडियो बनाने का इरादा रखते थे और मुमकिन है कि ये वीडियो बनाई भी गई हो। इस किस्म की और भी कई बातें खबर में मौजूद थी। मैंने अखबार को फाड़ कर एक तरफ फेंक दिया और नाश्ता किए बगैर बाहर निकल गया। अम्मी भी मेरी कैफियत देखकर गुमसुम खड़ी रही। आज थानेदार अशरफ ने खालू उस्मान और नासिर भाई वगैरह को मशवरे के लिए थाने बुलाया था। मैं भी अपने दोस्त जुबैर खान को लेकर पहुंच गया। थानेदार अशरफ से किसी अच्छी खबर की तवक्का नहीं थी और ऐसा ही हुआ। पता चला कि 4 मुलज़िमों में से अभी तक किसी का खोज नहीं मिला है। 2-3 पुलिस पार्टियां मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना की गई थी जो नाकाम वापस आई थी। आखिर में थानेदार अशरफ ने सिगरेट सुलगाते हुए खालू उस्मान से कहा, उस्मान साहब, कल एक MNA साहब का फ़ोन आया हुआ था।
MNA मुश्ताक गुराया साहब का नाम तो सुना होगा आपने। खालू उस्मान ने इस बात में सर हिलाया और इनका परेशान चेहरा कुछ मजीद परेशान नजर आने लगा। थानेदार अशरफ ने कहा, MNA साहब की ख्वाहिश है कि ये मामला मजीद न बिगड़े। वो मानते हैं कि लड़कों से एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है। अपनी बेवकूफ़ी से उन्होंने कानून को पीछे लगा लिया है, मगर ये भी हकीकत है कि बच्ची सही सलामत घर वापस पहुँच गई है। इस सूरत हाल में अगर कोई दरमियानी रास्ता निकाल लिया जाए तो दोनों पार्टियों के लिए बेहतर होगा। नासिर भाई ने चीख कर कहा, इंस्पेक्टर साहब, ये कोई ज़मीन के टुकड़े का झगड़ा नहीं है जिसमें दो पार्टियां आमने सामने खड़ी हैं। ये अगवा का संगीन तरीन जुर्म है। MNA साहब इसका दरमियानी रास्ता क्या निकालेंगे? क्या हमें कोई मुआवजा देंगे? खुदा का खौफ करना चाहिए इन्हें। हमारी जो बदनामी हुई है और हम जिस अजियत में हैं इसका दारो मदार कोई नहीं है। अगर कोई मदावा हो तो मुझे बताएं, और कोई थोड़ा बहुत मदावा है तो यही है कि हमारे साथ इंसाफ हो। वाजी और इसके यारों को इनके किए की पूरी सज़ा मिले। थानेदार अशरफ का गंदमी चेहरा एकदम सुर्ख हुआ। फिर वो ज़रा तहम्मुल से बोला, देखो बरखुरदार, मुझे तुम्हारे दुख का एहसास है, लेकिन मुसीबत के वक्त अक्लमंदी और हौसले से काम न लिया जाए तो मुसीबत और बढ़ जाती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई तो हो ही रही है, तुम लोग अपने सामने दूसरे रास्ते भी खुले रखो। तमाम रास्ते बंद नहीं करने चाहिए। मैंने कहा, इंस्पेक्टर साहब, इस तरह तो ये भी सोचा जा सकता है कि ये चारों लड़के कहीं MNA साहब के पास ही पनाह न लिए हों। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, नासिर भाई ने फौरन कहा, और लोग इस तरह करते हैं। ऐसे में हम MNA साहब से बातचीत करेंगे तो बेवकूफ़ी कहलाएंगे ना। थानेदार अशरफ का चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। वो खालू उस्मान से मुखातिब होकर बोला, देखो उस्मान साहब, आपके ये लड़के हर बात को उल्टा रहे हैं। आप इनको समझाएं वरना मामला ख़राब भी हो सकता है। मुझे आपसे हमदर्दी है, इसलिए ये बातें कह रहा हूँ। सेठ सिराज को पता है कि इनके बच्चे से जुर्म हुआ है, इसलिए इनकी नज़र नीची है, लेकिन जब इनको अपने बच्चे के बचाव की कोई सूरत नज़र नहीं आएगी तो इनका रवैया बदल जाएगा। वो मिसाल तो आपने भी सुनी होगी कि बिल्ली को जब अपने भागने का कोई रास्ता नज़र ना आए तो वो घिराने वाले की आंखों की तरफ आती है। मैं खुदा ना खास्ता आपको डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप इस मामले के हर पहलू पर ज़रा ठंडे दिल से गौर करें। मैंने कुछ कहना चाहा मगर खालू उस्मान ने मेरे हाथ पर हाथ रख कर मना कर दिया। ये बात अयां होती जा रही थी कि थानेदार अशरफ साहिब मुखालिफ पार्टी का असर कबूल कर रहा था। यह असर दबाव की शक्ल में हो सकता था और लालच की शक्ल में भी। घर में भी अजीब तनाव की सी कैफियत थी। ये चौथे या पांचवें रोज़ की बात है। अम्मी जान ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। मेरी छोटी बहन फरा कॉलेज गई हुई थी, मुझसे छोटा आतिफ सोया हुआ था। अम्मी जान के चेहरे पर गहरी संजीदगी थी। वो कहने लगी, ताबिश बेटा, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम तेरी खाला सफ़िया के साथ किया हुआ वादा निभा नहीं सकेंगे। आप किस वादे की बात कर रही हैं? अम्मी ने मुझसे नजरें मिलाए बगैर कहा, देखो ताबिश, सफ़िया रिश्ते में मेरी बहन है, मगर मैं इसे सगी बहनों से ज़्यादा चाहती हूँ। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं सरवत को दुल्हन बनाकर इस घर में लाऊं। मैंने लर्ज कर कहा, तो अब क्या हो गया है अम्मी? कौन सी क़यामत टूट पड़ी है? सरवत इस घर में दुल्हन बनकर आएगी और ज़रूर आएगी। अम्मी ने नफ़ी में सर हिलाया। ताबिश तो अभी बच्चा है, इन बातों को नहीं समझता। देख जो कुछ हो चुका है, इसके बाद हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और हमने कौन सा शामियाने लगाकर मंगनी की थी या अंगूठियां पहनाई थी? बस एक मुंह जुबानी बात ही थी ना। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझे तो लगता है कि आपके मुंह में शायद चची जान की जुबान आ गई है। क्या मुंह जुबानी क्या कोई बात नहीं होती? जुबान पर तो लोग जाने दे देते हैं। आपको इस तरह हरगिज नहीं सोचना चाहिए। मैं सोचने पर मजबूर हो रही हूँ ताबिश। हमारे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हमने अगले 1-2 सालों में इनके रिश्ते भी ढूंढने हैं। हमने सरवत का रिश्ता कर लिया तो सरवत के साथ ही बदनामी भी हमारे घर का रास्ता देख लेगी। फिर तेरी बहन के लिए यहाँ कोई रिश्ता आएगा और ना तेरे भाई को ढंग का रिश्ता मिलेगा। अम्मी जान, खुदा के लिए ये दकिया नूसी बातें न कर। सरवत वैसी ही है जैसी 2 हफ्ते पहले थी। वो पाक और मासूम है, इसके साथ कुछ नहीं हुआ है अम्मी। और अगर खुदा न खास्ता कुछ हो भी जाता तो इसको मासूम ही रहना था। मैं इसे ब्याहने से पीछे नहीं हट सकता। आप प्लीज़ ऐसी बातें न करें, मेरे दिल को कुछ होने लगता है। इस दौरान में एक हमसाई हमारे घर में दाखिल होगी। वो भी गालिबन सरवत वाले वाक़े पर हमदर्दी जताने के लिए आई थी। मुझे और अम्मी को खामोश होना पड़ा। मैं चकराया हुआ सा अपने कमरे में आ गया और बेजान सा होकर बेड पर गिर गया। ये सब क्या हो रहा है? अम्मी जान के रवैये में जो तब्दीली थी वही तब्दीली मैं छोटे भाई आतिफ में भी देख रहा था। हाँ, छोटी बहन फरा का मामला कदरे मुख्तलिफ था। वो सरवत से बड़ा प्यार करती थी। बहरहाल इस सानिए के बाद वो भी कुछ चुपचाप हो गई थी। बाकी रहे चचा चची और इनके बच्चे, सो वो कभी इस रिश्ते के हक में ही नहीं थे। मुझे अंदेशा था कि इस तरह की बातें कहीं सरवत के कानों तक पहुंच गई तो वो बहुत ज़्यादा असर लेगी। मेरा दिल चाहा कि मैं एक बार अकेले में इससे मिलूं और इसे हर तरह अपनी गैर मशरूत और गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत का यकीन दिलाऊं। ये यकीन ही था जो इसे दुख और मायूसी के भंवर से उभरने में मदद दे सकता था। मैं भी सरवत की तरफ जाने के बारे में सोच रहा था कि बैरूनी दरवाजे पर बेल हुई। छोटे भाई आतिफ ने बाहर जाकर देखा और मुझे बताया कि कुछ लोग मुझसे मिलने आए हैं। मैं बाहर पहुंचा तो 7-8 मुअज़्ज़ज़ सूरतों वाले अफराद
बाहर गली में खड़े थे। मैंने इनसे फर्दन फर्दन मुसाफा किया। एक सफ़ेद रेश भारी तनोतोश वाले शख्स ने कहा, मेरा नाम हाजी फ़ैरोज़ है। शाह आलमी बाज़ार में सेठ सिराज मेरा हमसाया है। ये बाकी लोग भी बाज़ार के ही हैं। हम आपसे मिलने आए हैं। तुअन उकरहन मैंने इन हजरात को ड्राइंग रूम में बिठाया। वैसे बात मेरी समझ में आ गई थी कि ये हजरात किस लिए तशरीफ़ लाए हैं। जल्द ही मुद्दा हाजी फ़ैरोज़ की ज़ुबान पर आ गया। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। हम सब बहनों बेटियों वाले हैं, इस दुख को बड़ी अच्छी तरह महसूस कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से अल्लाह का शुक्र भी है कि बच्ची सही सलामत घर वापस आ। मैंने कहा, हाजी साहब ये बात हम पहले भी कई दफ़ा सुन चुके हैं। आपने जो कहना है साफ साफ लफ्ज़ों में कहें, लेकिन अगर आप ये बात कहने के लिए आए हैं कि हम सेठ सिराज और इसके बेटे से किसी तरह की सुलह सफाई कर लें, तो ये एक ना होने वाली बात है। मैं इसके लिए आपसे बहुत बहुत माजरत चाहता हूँ। हाजी फ़ैरोज़ ने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो बेटा, तुम उस्मान साहब के होने वाले दामाद, इस घर में तुम्हारी बात सुनी भी जाती है। उस्मान साहब और दीगर घर वाले तो इस वक्त ज़्यादा सदमे में हैं, लेकिन तुम इन्हें इस मामले की ऊंच नीच समझा सकते हो। इस तरह के केस जब कोर्ट कचहरी तक पहुंचते हैं तो फिर जग हंसाई और परेशानी के बहुत सारे मौके निकलते हैं। प्रेस का तो सबको पता ही है, वो ऐसे मामलों को किस तरह उछालता है। फिर अदालत में जिरा के दौरान औरत से जिस तरह के सवाल पूछे जाते हैं वो भी सब जानते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक कह रहे हैं जी, लेकिन क्या आप ये चाहते हैं कि शर्मिंदगी और जग हंसाई से बचने के लिए इस तरह की सारी मजलूम लड़कियां अपनी जुबानों को ताले लगा लें और जुल्म करने वाले सीना तान कर दंदनाते फिरें और पूरी आज़ादी के साथ अपने लिए नए शिकार ढूंढते रहें? हाजी फ़ैरोज़ के साथ आने वाले एक मुअज़्ज़ज़ शख्स ने शफकत से मेरे कांधे पर हाथ धरते हुए कहा, ताबिश बेटा, जुर्म की संगीन नौइयत से तो किसी को इनकार नहीं, लेकिन सेठ सिराज का लड़का आदि मुजरिम नहीं है। वो बस बुरी सोसाइटी का शिकार है। अगर इसे एक बार सुधरने का मौका मिल गया तो वो सुधर कर दिखा देगा, लेकिन सज़ा भी तो सुधारने के लिए ही होती है चाचू जी। मैंने तलख लहजे में कहा, सज़ा तो बहुत मिल रही है इसे भी और इसके घर वालों को भी, लेकिन जिस सज़ा की तुम बात कर रहे हो वो किसी को सुधारती नहीं है बेटा जी। जेल में से अच्छे भले लोग पक्के मुजरिम बनकर बाहर निकलते हैं। मैं तो समझता हूँ कि तुम लोग बहुत बड़ी नेकी करोगे अगर इन लड़कों के लिए दिल में किसी तरह की नरमी पैदा कर लो। मैंने कहा, आप सब मुझसे ज़्यादा बड़े और समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि इन बातों के लिए ये मौका मुनासिब नहीं है। हमारे ज़ख्म हरे हैं, आप इन पर नमक न छिड़कें तो बेहतर है। ये बुजुर्ग 10-15 मिनट तक मजीद मेरे पास बैठे। वो मुझे इस बात पर कायल करने की कोशिश करते रहे कि मैं कम अज़ कम एक बार अपने खालू उस्मान और सेठ सिराज की मुलाकात का एहतमाम कर दूं। बहरहाल मैं किसी न किसी तरह इन लोगों को रुखसत करने में कामयाब हो गया। शाम को मुझे पता चला कि ये मुसालिहाती कमेटी खालू उस्मान और नासिर भाई वगैरह से भी मिली है। थोड़ी मोहब्बत और थोड़े ड्रावे के बाद उन्होंने खालू उस्मान को केस की पैरवी से हटाने की कोशिश की है। ये बड़ी तलख सूरत हाल थी। एक घराने को शदीद तरीन अजियत से दो चार करने के बाद अब इसको दबाव का शिकार बनाया जा रहा था। मेरी रगों में खून खुल रहा था और पूरे जिस्म में जहर बनकर फैल जाता था। मैं चाहता था कि नाइंसाफ़ी करने वालों की गर्दनों तक अपना हाथ पहुँचाऊँ और इन्हें घसीट कर चौराहे में ले आऊँ, लेकिन ऐसा करने के लिए जो फितरी हिम्मत और तवानाई दरकार थी वो मेरे अंदर नहीं थी। अगले रोज़ सुबह 11 बजे के लगभग मैं सरवत से मिलने खालू के घर पहुँचा। मुझे मालूम था कि खालू उस्मान और नासिर भाई वगैरह घर में नहीं होंगे। खाला सफ़िया की इजाज़त से मैं सरवत से चंद बातें कर लूँगा। गुमसुम खाला से अलैक सलैक करने के बाद मैं सरवत के कमरे में पहुँचा तो वो चादर ओढ़े लेटी हुई थी। बेड पर सिरानी की तरह इसकी एक खूबसूरत तस्वीर आवेज़ा थी। ये घर के फूलों भरे लॉन का मंजर था। वो हाफ स्लीव कमीज में थी और वाटर टाइप के जरिए अपने छोटे भतीजे पर पानी फेंक रही थी। पानी की फुहार के पीछे वो खुद किसी जलपरी की तरह नजर आती थी। हवा से उड़ते बाल, कलियों जैसे दांत और रुखसारों पर ठहरे हुए पानी के कतरे, जैसे गुलाब पर शबनम का बसेरा हो। कितनी शोखी और खुशी सिमट आई थी इस एक लम्हे में इसके अंदर। ये मेरी पसंदीदा तस्वीर थी, इसलिए सरवत ने अपने बेडरूम में लगाई थी। सरवत, मैंने होले से आवाज़ दी। वो सीधी लेटी हुई थी। इसने चादर अपने ऊपर से हटाई और सूजी सूजी सुरख आंखों से मेरी तरफ देखा। इसके चेहरे पर तहय्युल नमदार हुआ और वो दुपट्टा संभालती हुई उठकर बैठ गई। इसके अकब में फूलों भरे लॉन वाली तस्वीर थी। कितना फ़र्क था इन दोनों मनाजिर में। वो दिनों में ही महीनों की बीमार नजर आने लगी थी। मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने इसके करीब बैठते हुए कहा, कैसी हो सरवत? वो सिसकी और मुंह फेर कर बोली, अब कोई कसर रह गई है जो तुम निकालने आए हो? क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरान होकर पूछा। जो कुछ हुआ है तुम्हें भी ज़रूर पता होगा और हो सकता है कि तुम्हारी मर्जी भी इसमें शामिल हो। कसम से सरवत, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। कल तुम्हारी अम्मी का फ़ोन आया था। उन्होंने अम्मी से पता नहीं क्या बातें की हैं। वो कल शाम से रो रही हैं। न कुछ खाया पिया है, न किसी से बात की है, लेकिन पता तो चले सरवत बात क्या हुई है। तुम अनजान बनो तो और बात है,
वरना तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा। सरवत ने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने घुटनों पर माथा टेका और चेहरा छुपाकर सिसकियों के दरमियान बोलती चली गई। मेरी तरफ से तुम आजाद हो ताबिश, मैं तुम पर कोई रोक नहीं लगाऊंगी, न गुजरे दिन याद दिलाकर तुमसे कोई शिकवा शिकायत करूंगी। मेरी किस्मत में यही लिखा था, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। तुम्हारी जगह कोई भी होता तो यही करते। बस मुझे माफ कर दो, मैं बदनसीब हूँ, खुद को तुम्हारे लायक न रख सकी। अब जो सजा मुझे मिलनी है वो मैं अच्छी तरह जान गई हूँ, और ये भी जान गई हूँ कि मिन्नत समाजत से ये सजा माफ नहीं होनी। इसलिए मैं कबूल करती हूँ, सब कुछ कबूल करती हूँ। वो रोती चलेगी, मेरा दिल कट कर 100 टुकड़े हो गया। मैं सरवत के हसास तबा के बारे में बड़ी अच्छी तरह जानता था। मुझे अंदाजा था कि इस वक्त इसके दिल पर क्या गुजर रही है। मैंने इसके कांधे पर हाथ रखते हुए कहा, सरवत तुम किसी की बातों पर न जाओ, शादी मेरी और तुम्हारी होनी है, और ये जरूर होकर रहेगी। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। अम्मी जान को भी वही करना है जो मैं चाहूँगा। मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे लिए किस किस से लड़ोगे, किस किस की जुबान बंद करोगे? मैं तुम्हारी जिंदगी को अजाब में डालना नहीं चाहती ताबिश, तुम वही करो जो तुम्हारे बड़े कहते हैं। इसका चेहरा बदस्तूर घुटनों पर झुका रहा है। ऐसा नहीं होगा सरवत, और ना होता है। हाँ ये है कि सब कुछ ठीक होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा, बस इस थोड़े से वक्त को हमने हिम्मत और हौसले से गुजारना है। तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी तबीयत खराब है ताबिश, इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज प्लीज। मेरी आंखों में नमी थी। मैं इसके हाथ को तसल्ली बख्श अंदाज में थपक कर बाहर आ गया। खाला सफिया और नुसरत वगैरह में से कोई मेरे सामने नहीं आया और ना कोई बात की। मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि किसी लड़की के साथ पेश आने वाला इस तरह का वाक़या इसकी और इसके वारिसों की जिंदगी में इस तरह का तूफान मचा सकता है। मैं बहुत परेशानी के आलम में घर पहुंचा। अम्मी किचन में थी। मेरा चेहरा देखकर ठटक गई। क्या हुआ था अभी? उन्होंने बेचैन होकर पूछा। ये तो आप बताएं कि क्या हुआ है। मैं समझी नहीं। आपने कल खाला सफिया को फोन किया है, इसके बाद से उनका रो रो कर बुरा हाल है। अम्मी ने मोहब्बत से मेरे शाने पर हाथ रखा और मुझे एक तरफ कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, ताबिश मुझसे कसम ले लो जो मैंने कोई ऐसी वैसी बात कही हो। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं अभी आ नहीं सकती क्योंकि फरा के पेपर हो रहे हैं, इसलिए मसरूफ हूँ। आप जरा खुद सोचिए अम्मी, जिस दिन से ये वाकया हुआ है आप सिर्फ एक दफा खाला के घर गई हैं। फोन भी आपने बस एक आध बार ही किया है। अगर अब खाला सफिया ने आने का कहा था तो आप चली जाती, मगर आपने मसरूफियत वाली बात कह दी। और मैं समझता हूँ अम्मी कि बात से भी ज़्यादा वो लहजा अहम होता है जिसमें बात कही जाती है। आप खुद ही तो कहा करती हैं कि ताबिश कोई बात नहीं हुई। अम्मी ने तेज़ी से मेरा जुमला काटा। बस सफिया महसूस ज़्यादा कर लेती है। अगर आपको पता है कि वो ज़्यादा महसूस करती हैं तो फिर आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। अम्मी खामोशी से सब्ज़ी बना रही थी। इनके चेहरे से इनकी दिली कैफियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल था। मैंने तवील सांस लेते हुए कहा, अम्मी आप जो भी सोचती हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मेरी मर्ज़ी का ख्याल रखेंगी। बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए हर छोटी बड़ी चीज़ आपने ही पसंद की है। सरवत को भी आपने ही पसंद किया है। ये आप ही का दिखाया हुआ रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूँ। तो दोस्तों अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।